شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ہمارا جو سیشن چل رہا ہے یہ ہے الون کلون۔ تنہا کو تنہا نہیں رہنے دیا، اس کی کلوننگ کر کے اس نے اس سے قومیں پیدا کر دی، اس سے کراؤڈ پیدا کر دیا، اس سے رونقیں پیدا کر دی، اس میں سے خوشیاں نکل آئیں، اس میں سے تازگی آ گئی۔ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یقیناً آپ نے لکھ لیا ہوگا کہ خدا نے اپنی خود کلوننگ کی، اپنے بیٹے بنائے اور پھر سرافیم بنائیں اور کروبی بنائیں اور مسنجر بنائیں، واریر بنائیں، پروٹیکٹر بنائیں اور ہیلپر بنائیں، انسان نکلے، پرند چرند، تو یہ سب کچھ پھول پھل خوبصورتی چاند ستارے یہ سب کچھ اس کے کلوننگ سے ہوا، لیکن اس کے پروسیس ڈیفرنٹ ہیں، اس کے عوامل ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ کافی بات ہم کر چکے ہیں اس پہ۔ آدم کی کلوننگ ہوئی تو اس میں سے ہوا نکلی، اور پھر ہوا اور آدم سے کہن ہابل، اور پھر آج تک نسل چل رہی ہے۔ پروسیس الگ ہو گیا۔ خدا نے مٹی کا ایک بت بنایا، اس میں اپنے دم کی کلوننگ کی، اپنے دم میں سے دم آدم میں ڈال دیا۔ آدم ایک پاک انسان بن گیا، اسی لیے یسوع کو کہا گیا ابن آدم۔ وہ اس کا ابن نہیں ہے جب اس نے لغزش کھائی، جب اس سے غلطی ہوئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جیسے ہی وہ پاک حالت میں تھا، جب خدا نے اپنے دم کا حصہ اس کے اندر رکھ دیا۔ یعنی کہ خدا کا جو دم ہے، جو زندگی کا دم ہے، جو مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے دم پھونکا، تو دم پھونکا اور روایت ملتی ہے، اور 14 طرح کے تالمود ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ یسوع وہ چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بنا کے بچے وہ پھونک مارتا تھا، اڑ جاتے تھے۔ یہ آپ کو کسی کتاب میں ایسی شخصیت نہیں ملے گی کہ ایک طرف ایل ایلون مٹی کے بت میں پھونک مار رہا ہے اور وہ جیتی جان ہو گیا، وہ انسان ہو گیا، اور ایک طرف یسوع مٹی کے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنا کے پھونک مارتا ہے اور وہ کھلونے چڑیاں بن کر اڑ جاتے ہیں، پرندے بن کے اڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک کلوننگ ہے کہ یسوع کی بھی کلوننگ ہو رہی ہے کہ وہ آگے زندگی دے رہا ہے، اور یوحنا کی انجیل میں اس نے کہا بھی کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اب یسوع سے ایک اور کلوننگ ہوئی ہے، جب وہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے اور اس کی پسلی پر نیزہ مارا گیا ہے، اور پسلی تو نہیں ٹوٹی، لیکن پسلی میں ایک ایسا گیپ آیا اور وہاں سے کلوننگ کی گئی، وہاں سے حصہ نکالا گیا، جو پانی نکلا اور خون نکلا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو نسل آگے بڑھتی ہے، جو افزائش نسل کا طریقہ ہے، خدا کی جو نسل آگے بڑھی ہے وہ اس کی اپنی کلوننگ ہے، جو اس کے فرشتے ہیں۔ آدم کی جو کلوننگ ہوئی تو اس سے ہوا نکلی، اور اس کے بعد وہ ہوا سے اور آدم سے ایک نئی نسل کا طریقہ ہو گیا کہ وہ مین اور وومین کے دونوں کے ملنے سے جو آگے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا ایک اور سسٹم ہے۔ اب مسیح کی آپ
देखे बात, तो उससे डबल क्लोनिंग चल रही है। एक है कि उसके पसली में से जो पानी निकला है, जो खून निकला है, ये एक ऐसा बीज निकला है वहाँ से जिसने जब वजूद पाया तो वो वजूद है कलीसिया। कलीसिया का मतलब है निकाला गया, बाहर बुलाए हुए। तो ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है अक्लीसिया, जिसका मतलब है बाहर रखना, अलग करना। आदम से अलग की हवा, तो एक तरह से वो एक कलीसिया है। और फिर यीशु से जो अलग किया गया हिस्सा, उसने जो वजूद लिया, वो है आज का चर्च, जिसे अक्लीसिया या कलीसिया कहा जाता है। और तो जो कलीसिया का वजूद आया, वो वही जो खून और पानी निकला उस वक्त, तो उस से जो वजूद पैदा हुआ वो आज का चर्च है, वो आज की कलीसिया है, वो आज का वो वजूद है जिसे दुल्हन कहा गया है। मकाशफा की किताब में कहा गया कि दुल्हन, बर्रे की दुल्हन। तो इस बात को आप बारीकी से समझें कि जो यस्सु के सीने से, यस्सु की पसली में से खून और पानी बह निकला, वो जो होल हुआ है उसमें से जो लोग बने हैं, वो उसके खून से और उस पानी से जो लोग बने हैं, पानी से जो धुले हैं, खून से जो दागदार हुए हैं, खून से जो रंगे गए हैं, खून से जो स्टैम्प्टेड हैं, वो है उसकी कलीसिया, वो है उसकी दुल्हन। बहुत सारे आज लोग कह रहे हैं कि हम यीशु की कलीसिया हैं। बड़े सारे बिदती ग्रुप हैं, बहुत सारे नाम नहाद हैं, बहुत सारे अपने पेट की पूजा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस तरह चल रहे हैं। लेकिन जो कोई हर बात में यीशु को अव्वल दर्जा देता है, ना दाएं मुड़ता है ना बाएं मुड़ता है, उसका महवर, उसका टारगेट, उसकी मंजिल, उसका निशान सिर्फ और सिर्फ यीशु है, आप उसको कह सकते हैं कि ये वो है जो उसकी पसली से निकला, ये वो है जो उसके सीने से निकला, ये वो है जो उसके लिए है, ये वो है जो उसका हिस्सा है। उसको ना तो जन्नत का चाह है, ना उसको दोज़ख का डर है, ना उसको पैसे का लालच है, ना उसको स्टेज का लालच है, ना उसको बड़े बड़े नाम ओहदों का, इज़्ज़त मुआब और अजीम खादम और खुदा के मंजे हुए खादम। किसने उनको मंजा है? मंजने का मतलब होता है, जैसे पंजाबी में कहते हैं मांजना, मंजना, तजर्बाकार, परखा गया हुआ खादम, उसको कहते हैं मंजा हुआ, जो परखा गया है। किसने उसको परखा है? वो तो परखा गया ही नहीं। उसने क्या गरीबी देखी है? उसने भूख देखी है? उसने नंगापन देखा है? उसने मुसीबतें काटी हैं? उस पर जुल्म हुए हैं? उसको बेइज्जत किया गया है? उसे घरों से निकाला गया है? उसको स्टेज नहीं मिला? उसको कुछ अहमियत नहीं दी गई? वो मारा कूटा समझा गया? वो इस आयत को देखता है कि उस पर जब लोग तुमको सताएं और तुम्हारी निस्बत नाहक बातें करें तो तुम खुश होना, क्योंकि तुम्हारा अजर बड़ा है। ये है मंजा हुआ, ये है अजीम, ये है इज्जत के काबिल। ये नहीं कि किसी तरह के बूट नोकदार चमकीले और रंग बिरंगी पैंटें और रंग बिरंगे कोट और रीछ नचाने वाला ड्रेसिंग और इस तरह से आगे पखंडी लोग और फूल डाल रहे हैं, धमालें डाल रहे हैं। ये किस तरह का? जब शागिर्दों पर ऐसा मौका आया तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने कहा हम भी आपकी तरह के हैं, आप हमें क्या समझते हैं? ये तो इस्तेमाल करने वाले की बात है। उसने हमें चुन लिया और वो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुम्हें मुकर्रर किया।
हमें मुकर्रर किया गया है। अब मुकर्रर किया गया, किसी को मुकर्रर कर दिया कि तू यहाँ सफाई कर, किसी को मुकर्रर कर दिया कि तूने आटा गूंद, तू रोटी बना, तू पौधों की देखभाल कर, तू कपड़े इस्त्री कर, तू कपड़े धो दे, तू किसी की इस तरह हेल्प कर दे। तो ये तो मुकर्रर करने वाले की बात है। जैसे बाप मुकर्रर करता है अपने बच्चों को कि तूने कारोबार देखना है, एक सास, एक बुज़ुर्ग माँ अपनी बेटी को, अपनी बहुओं को वो मुकर्रर करती है, तूने खाना बनाना है, तूने रोटी बनानी है, तूने कपड़े धोने हैं, तूने घर की सफाई करनी है, उसने मुकर्रर किया है। तो अब वो मुकर्रर जो हो चुका है वो उसमें क्या अजमत है? ये तो अजमत तो उसकी है जिसने उसको समझा कि ये इस लायक है, उसने समझा है कि मैं ये कर सकता हूँ। अपनी अपनी खिदमत की पहचान कर सकते हैं कि मेरे पास खिदमत क्या है। क्या मेरे एक चर्च का एल्डर है, वो साल से, अभी लड़का ही था जब से वो हमारे साथ खिदमत कर रहा है। अब वो मेरे चर्च का एल्डर है और बड़ी दयानतदारी के साथ वो भी खिदमत करता है, उसकी बीवी भी खिदमत करती है, उसका बाप भी खिदमत करता है, और उसका एक भाई मेरे चर्च का पास्टर है। और खुदावंद का शुक्र है कि वो बड़ी दयानतदारी के साथ काम करते हैं। मैं कई दफ़ा कुछ थोड़ा सा सख्त भी बोल दूं, वो खुशी से सुनते हैं। बेशक उनको अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जाहिर तो ऐसे ही होता है जैसे वो खुश है, क्योंकि तरबियत करना किसी के लिए भी आसान नहीं, ना सुनने वाले के लिए, ना सुनाने वाले के लिए। अबरानियों के खात में लिखा है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे तंबीह भी करता हूँ। जो लीडरान हैं, जो रहनुमा हैं, अगर वो हर वक्त चॉकलेट खिलाते रहें, तरबियत ना करें, वो चर्च भी बैठ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, वो कलीसिया भी ख़राब हो जाएगी, वो ख़ानदान भी ख़राब हो जाएंगे, वो बिज़नेस भी ख़राब हो जाएंगे, वो फैक्ट्रियाँ भी ख़राब हो जाएंगी, वो हर सिस्टम, वो दोस्ती भी ख़राब हो जाएगी। अगर एक दोस्त किसी दूसरे दोस्त को आईना नहीं बन के बताता, आईना जो है, जो कुछ आप होते हैं वो आपके सामने आ जाता है, जहां दाग लगा है वो नहीं छुपाता। दोस्त आपको तंबीह भी करेगा, वो आपको अप्रिशिएट भी करेगा, जैसे आप हैं वो खुशी के साथ कहेगा आपकी ये बड़ी एबिलिटी है। तो ये ख्याल रखें कि अगर हम यस्सु का हिस्सा हैं, यस्सु की क्लोनिंग हुई है, यस्सु में से निकले हैं, तो फिर हमें पूरे तौर पर 100%, 99 नहीं, 100%, 100 हर बात में उसको अव्वल दर्जा देना है। फिर तो हम कह सकते हैं कि हम उसकी क्लोनिंग है। जैसे मैंने कहा कि आदम की क्लोनिंग हवा है, हवा वही है, नारी वही है जो अपने शौहर के साथ बिल्कुल फेयर है। अगर उनके पास आधी रोटी है तो वो आधी उसके साथ खाती है। बच्चे उसके साथ खुश हैं या नहीं, वो कहती मैंने तुम्हारे बाप के साथ रहना है, मैं जब तक जीती हूँ मुझे इसकी केयर करनी है, मुझे इसको संभालना है। वो शौहर को नहीं इस तरह से प्रेस करती कि तू मेरे ताबे हो। बाइबल में किसी जगह पर नहीं लिखा कि ऐ शौहर अपनी बीवियों के ताबे रहो, क्योंकि शौहर 99% है और बीवी 1% है। हम यस्सु को, जैसे कहा गया है कि यस्सु को अव्वल दर्जा दें अपनी लाइफ में, ना कि हम यस्सु पर कंट्रोल करें कि तू हमारे तरीके से चल। वो जो चल रहा है, जैसा उसका तरीका है वो उसका तरीका है। हमारा सिर्फ ये काम है हम उसकी ताबेदारी करें, हम उसकी फर्मा बरदारी करें, हम उसकी पैरवी करें, हम उसकी सुने। हमारा ये काम है, क्योंकि हम उसकी कलीसिया हैं, हम उसकी कलीसिया हैं, हम उसकी क्लोनिंग हैं, हम उसका बदन हैं, हम उसकी दुल्हन हैं, हम उसके लिए हैं, हम उस में से हैं। वो हम में से नहीं, हम उस में से हैं। इसलिए हमें हर तरह से औरत को मददगार आदम की बनाया गया है। इसलिए लिखा है कि शौहर उससे मोहब्बत रखे, क्योंकि वो उसका हिस्सा है। और अगर वो मोहब्बत रखता है लेकिन जो बाहर निकाली गई है चीज़, जो कलीसिया है, वो उसको दुख देती रहे, वो उसको परेशान करती रहे, तो ये बदनामी और बेइज्जती की बात है। और बाइबल कहती है
ऐसी औरत को से अलग हो जाओ, क्योंकि डिवोर्स, लफ्ज़ तलाक कमज़ोर रिश्ते की बात है। ये कमज़ोर डोरियां हैं, ये वफादारी से बंधी रहती हैं। ये वफादारी की डोरी इतनी पुख्ता है कि इसको मौत, यहाँ तक कि मौत भी इसको नहीं तोड़ सकती। लेकिन इसमें अना, इसमें खुदी, इसमें खुद नमाई औरत की उसको ख़त्म कर सकती है, क्योंकि मर्द सार है, औरत उसका हिस्सा है। ये नहीं कि औरत बदन है, औरत उसका हिस्सा है बदन का, लेकिन पूरा बदन नहीं है। मर्द पूरा सार है, मर्द 99% है। खुदा एलोन गॉड फॉर एवरीवेयर, लेकिन फरिश्ते हर जगह पर नहीं, खुदा हर जगह पे है। मर्द हर तरह से है, लेकिन औरत हर तरह से नहीं है। औरत को यही एक रुतबा दिया गया है कि वो इसकी इज्जत में रहे, इसकी ताबेदारी में रहे, इसकी फर्मा बरदारी में रहे। ये कलीसिया खुद मसीह की ताबेदारी में रहे, मसीह की फर्मा बरदारी में रहे। और अगर कलीसिया कहे कि ना, उसे भी तो चाहिए ना, यस्सु को भी चाहिए हमारी ताबेदारी करे, यस्सु को भी चाहिए हमारी सुने, यस्सु को भी चाहिए ये करे, ना ना ना, ये बात नहीं है। इसलिए इन क्लोनिंग सिस्टम को समझना ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि आप अच्छे बेटे हैं, तो बाप की ताबेदारी में रहें, क्योंकि आप बाप की क्लोनिंग हो। आप एलोन गॉड के फरिश्ते, उसके जो उसने बनाई अपनी कुव्वतें, उसके ताबे हैं। अबलीस ने ताबेदारी आज भी वो कर रहा है, लेकिन मसीह को नहीं मानता। इसी तरह हवा आदम की ताबेदारी में थी, लेकिन हुक्म अदूली की गई। किसकी? बाप की। आदम ने कहा था कि इसको नहीं खाना, लेकिन हवा ने किया, यह हुक्म अदूली की गई। आदम एक तरह से उसका बाप भी है, हवा उसकी एक तरह से बेटी भी है, और एक तरह से उसका पार्टनर भी है, उसकी मददगार भी है, उसकी हेल्पर भी है। इसी तरह कलीसिया मसीह में से निकली है, यह मसीह की दुल्हन है, मसीह का हिस्सा है, लेकिन अपनी मनमानी करके मसीह के लिए ज़्यादा दुख का सबब बनती है। इसलिए हर एक कलीसिया आसमान पर नहीं जाएगी। आदम के लिए बहुत औरतें थी, लेकिन उसने एक ही बनाई। बहुत सारे लोग हैं, इस बहुत बड़ी दुनिया में से एक ही कलीसिया बनाई गई। तो इसलिए अपनी अहमियत को समझें। जो औरत, जो लड़की किसी एक लड़के के लिए चुनी जाती है, उसको अब पूरा ध्यान उसकी तरफ रखना है। उसके साथ बहस, उसके साथ मुकाबलाबाजी, उसके साथ टकराव नहीं करना। आप उसके लिए चुनी गई हो, आप उसकी क्लोनिंग हो, आप उसकी कुंडली हो, आप उसका ग्राफ हो, आप उसका रास्ता हो, आप उसका साथी हो, आप उसकी खुशी हो, आप उसकी ताजगी हो, आप उसका जलाल हो। आप खूबसूरत हो, जवान हो, अट्रैक्टिव हो, आप शौहर का एक जलाल हो कि ये उसकी बीवी है। लेकिन अगर अपने शौहर के लिए तो रुखली खुखली और बेकार और बाल बिखरे, और ऐसे लगता है जैसे कल शाम को इसको तो जिन चमड़ गए, इसको तो चड़ेलें चिमड़ी हुई हैं, इसको तो बदरुएं चमड़ी, और दूसरों के लिए वो तो बन गई पता नहीं कौन सी स्टार कह लो, खूबसूरत भी लग रही है, बनाओ सगार भी सब कुछ है, और अपने बंदे के लिए मलंगनी है। तो इसका मतलब है कि आप अपने शौहर के लिए नहीं हो, आप किसी और के लिए ऐसा कर रही हो। कलीसिया में भी ऐसे ही है। मसीह के कामों के लिए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए प्रोग्राम हैं, सेमिनार्स हैं, बड़े बड़े इज्तिमा हैं, बड़े बड़े क्रूसेड हैं, वीडियो बन रही हैं, टीवी चल रहे हैं, चैनल चल रहे हैं, लेकिन मसीह के लिए तो रुखली खुखली, बेकार, मायूस, नाउमीद। तो क्या ऐसी दुल्हन को दूल्हा प्यार करेगा? ऐसी औरत को शौहर गले लगाएगा? वो तो फिर वही लगाएंगे जिनके लिए वो सब कुछ कर रही है।
کاش خداوند آپ کو اس سارے کلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جیتے رہیں۔ جے مسیح۔